اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا سامنے کون کھڑا ہے؟ یا پھر چلنے کے لیے اب تمہیں گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کرنی پڑیں گی؟ منزہ نے اپنے ماتھے کو رگڑتے ہوئے سامنے کھڑے بازل کی خونی نظروں سے اسے دیکھا، جو ظہیر صاحب کے اسٹڈی روم کے دروازے پر بالکل اس کے سامنے آ کر ٹکرا گیا تھا۔ او ہیلو محترمہ، اندھا میں نہیں ہوں بلکہ تم ہو، جو ہر وقت اپنے ہاتھوں میں پکڑی ان موٹی قانونی کتابوں میں گھسی رہتی ہو، اور یہ میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی چاہوں جیسے چاہوں چل سکتا ہوں۔ بازل نے بھی اپنے کوٹ کو جھٹکتے اسے گھورا اور اسٹڈی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تمہارا گھر ہے تو کیا تم اڑتے پھرو گے؟ اور ویسے بھی ماموں جان نے مجھے بلوایا ہے، اس لیے میں اندر جاؤں گی، تم باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو۔ منزہ نے جلدی سے اسے کوہنی مار کر پیچھے کیا اور خود دروازے کا ہینڈل پکڑ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، جنگلیوں کی طرح دھکے کیوں دے رہی ہو مجھے؟ ڈیڈ نے بلایا اور ظاہر ہے وہ مجھ سے کوئی ضروری بزنس ڈسکس کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے تم جا کر کچن میں پکوڑے تلو، تمہارا دماغ یہاں کسی کام نہیں آنے والا۔ بازل نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا اور اتنی دیر میں دروازہ اندر سے خود ہی کھل گیا اور سامنے ظہیر صاحب انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑے ان دونوں کی بچکانہ حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ دروازے پر کھڑے ہو کر محلے کی عورتوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ اندر آؤ دونوں اور چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ جاؤ، مجھے تم دونوں سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ ظہیر صاحب نے سخت لہجے میں کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو کچی کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ایک ہی صوفے کے دو الگ الگ کناروں پر ایسے بیٹھے جیسے بیچ میں کوئی سرحد ہو۔ ظہیر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھ کے ان دونوں ضدی انسانوں کو دیکھنے لگے جن کی آپس میں کبھی ایک پل بھی نہیں بنی تھی۔ دیکھیں مامو جان، آپ اس سے کہیں کہ اب مجھ سے دور رہا کرے اور مجھ سے سیدھی طرح بات کرے، میں اس کی کوئی ملازمہ نہیں ہوں جو یہ مجھ پر اپنے روک جھاڑتا ہے۔ مولزہ نے فوری شکایت کہی جس پر بازل نے منہ بنایا۔ اور ڈیڈ، آپ اپنی اس لاڈلی بانجی سے کہیں نا کہ اپنے کالے کوٹ والے مشورے مجھے مت دیا کرے، یہ خود کو پتہ نہیں کون سی سپریم کورٹ کی جج سمجھتی ہے۔ بازل نے بھی ترکی جواب دیا۔ بس کر دو تم دونوں، میں نے یہاں تم دونوں کی یہ فضول بحث سننے کے لیے نہیں بلایا۔ ظہیر صاحب نے میز پر ہاتھ مار کر انہیں خاموش کروایا۔ منزہ، تم میری اکلوتی اور جان سے پیاری بہن بیگم رائنا کی بیٹی ہو، جو تمہارے باپ سلیمان کے انتقال کے بعد تمہاری ماں اور تمہیں اس گھر میں اس لیے لے کر آیا تھا تم دونوں کو کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے آج میں تم دونوں کے لیے ایک حتمی فیصلہ کر چکا ہوں۔ ظہیر صاحب کی بات سن کر منزہ اور بازل دونوں ہی الجھ گئے اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں آج اور ابھی ایک دوسرے سے نکاح کر لو، اور یہ میری کوئی گزارش نہیں ہے بلکہ میرا فیصلہ ہے جسے تم دونوں کو میرا حکم سمجھ کر قبول کرنا ہی ہوگا۔ ظہیر صاحب کے ان الفاظ نے جیسے کمرے میں بم پھاڑ دیا۔ منزہ اور بازل دونوں ایک ہی جھٹکے میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے چہرے پر شدید صدمے کے تاثرات تھے۔ کیا نکاح ماموں؟ اچانک کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں اور اس انسان سے نکاح کروں گی جس کی شکل دیکھ کر میرا پورا دل خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے اچھا تو میں کسی سبزی والی سے شادی کر لوں، کم از کم مجھے روز تازی سبزیاں تو کھلائے گا نا، یہ تو مجھے ایسے زہریلے تانوں سے مار دے گا۔ منزہ نے روحانی شکل بنا کر بازل کی طرف اشارہ کیا جو خود پہ غصے سے اوپر رہا تھا۔ اور ڈیڈ، آپ کو لگتا ہے کہ میں اس جاہل سے شادی کروں گا جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے؟ یہ تو میرے پورے گھر کو عدالت بنا دے گی اور مجھ پر میرے پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دے گی اور مجھے ہر وقت جرح کرتی رہے گی۔ میں اس سے شادی کرنے سے پہلے ساری زندگی گوارا رہ لوں گا۔ بازل نے اپنے بال نوچتے ہوئے ظہیر صاحب کو دیکھا، سو انتہائی سکون سے ان دونوں کا تماشا دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ اس رد عمل کے لیے تیار تھے۔ ظہیر صاحب دراصل اپنی بہن کی بگڑتی ہوئی صحت کی وجہ سے شدید پریشان تھے۔ ڈاکٹرز نے حال ہی میں نے بتایا تھا کہ بیگم رائنا کو کینسر ہے اور وہ اس قیامت خیز خبر کو اکیلے ہی جھیل گئے تھے۔ یہ بات ظہیر صاحب نے گھر میں سب سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، پر وہ اپنی بہن کی آخری خواہش پر ہر صورت پر پوری کرنا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اس گھر کی بہو بنے، ہر ظہیر صاحب کے سامنے ہی اپنے گھر میں آباد ہو جائے۔ میں نے کہا نا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم دونوں نے ایسے ہی نکاح کرنے سے انکار کیا تو میں آج ہی تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا، پھر تم دونوں جہاں مرضی جا کر دھکے کھانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بازل، تم بھی سن لو، میں ساری جائیداد کسی یتیم خانے کو دے دوں گا اور تمہیں ایک ڈھیلا تک بھی نہیں ملے گا۔ ظہیر صاحب کی اس دھمکی پر بازل اور منزہ دونوں کے ہی طوطے اڑ گئے کیونکہ دونوں ہی اس پرتعیش زندگی کے عادی تھے اور سڑک پر آنے کا تصور ان کے لیے بھیانک تھا۔ منزہ نے کنکھیوں سے بازل کو دیکھا جو غصے سے اپنے دانت پیس رہا تھا۔
اور پھر اس کے ذہن میں ایک انتہائی شاطرانہ خیال آیا، ارے مامو جان، آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ میں تو بس ایسے ہی ذرا سا غصہ کر رہی تھی، اور میں تو یہ نکاح کرنے کے لیے بالکل راضی ہوں، آخر آپ میرے ماموں ہیں اور میں آپ کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ البتہ ان نواب صاحب کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ منازع نے اچانک اپنے چہرے پر معصومیت سجا لی اور نہایت فرما برداری سے ظہیر صاحب کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلا تیر بازل کی طرف پھینکا۔ بازل جو ابھی تک غصے میں تھا، منازع کی اس اچانک کلا بازی پر ہکا بکا رہ گیا اور اسے گھورنے لگا جیسے وہ کوئی اڑن تشتری ہو۔ تم کتنی بڑی ڈرامے باز ہو، ابھی 2 منٹ پہلے تم مجھے عذاب کہہ رہی تھی اور اب اتنی جلدی ماموں کی لاڈلی بھانجی بن گئی۔ تمہاری یہ چال بہت اچھے سے سمجھتا ہوں میں۔ بازل نے غصے سے منازع کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ منازع نے بھی سینہ تان کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، پھر بڑی چلاکی سے مسکرائی۔ میں نے تو ہاں کر دی ہے، اب تم جانو۔ منازع نے کندھے اچکائے۔ ظہیر صاحب نے بازل کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں کہا، دیکھو بازل، منازع مان گئی ہے، اب اگر تم نے انکار کیا تو تم جانتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اور ویسے بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے جو تمہارے حق میں بہت بہترین ثابت ہوگا۔ بازل سمجھ گیا کہ منازع نے جان بوجھ کر ہاں کی ہے تاکہ وہ ظہیر صاحب کی نظروں میں اچھی بن جائے اور سارا ملبہ اس پر گر جائے۔ اس نے بھی ہار ماننے کے بجائے منازع کے کھیل اس پر الٹنے کا فیصلہ کیا اور اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ بازل کی کنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ منازع کی طرف اس نے دیکھا، جس کی مسکراہٹ بازل کی ہاتھ سن کر ایک دم غائب ہو گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ بازل کبھی نہیں مانے گا اور وہ خود بخود اس مصیبت سے بچ جائے گی، پر اب تو پاسا ہی الٹ گیا تھا۔ شاباش، مجھے تم دونوں سے یہی امید تھی۔ اب ہم حق مہر کی بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں 50,000 روپے حق مہر بہت ہے، آخر تم دونوں کے گھر کے بچے ہوں گے اور ہمارا سب کچھ بھی ویسے تم دونوں کا ہی ہے، ظہیر صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر ان دونوں کے کندھے تھپتھپائے۔ 50,000؟ منازع کی آواز کمرے میں اتنی زور سے گونجی کہ بازل کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ مامو جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 50,000 میں تو آج کل میرا ایک اچھا سا برانڈڈ سوٹ بھی نہیں آتا، اور آپ پوری زندگی کی قیمت 50,000 لگا رہے ہیں۔ کل کو یہ مغرور اور خپتی انسان مجھے دیکھ کر نکال دے تو میں 50,000 کا کیا کروں گی؟ بازل نے زوردار کہکا لگایا اور ہاتھ باندھ کر منازع کے قریب کھڑا ہو گیا۔ 50,000 بھی زیادہ ہے ڈیڈ، اگر مجھ سے پوچھے تو اسے 5 روپے بھی نہ دوں میں۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی مفت میں اپنے گھر باندھ کر ملے۔ شکر کرو کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں، اور ہیلو، احسان تو میں تم پر کر رہی ہوں تم سے شادی کر کے۔ کوئی بیوقوف لڑکی ہوگی جو تمہارے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرے گی، اور ہاں، وہ تم ہو نا۔ بازل نے ہنستے ہوئے کہا، مامو جان، 50,000 بالکل نہیں، بلکہ شہر والا اپارٹمنٹ چاہیے مجھے، وہ اپارٹمنٹ جو آپ میرے نام کریں گے تو میں اس شخص سے نکاح کروں گی، ورنہ آپ مجھے بے شک گھر سے نکال دیں، میں سڑکوں پر رہ لوں گی، پر اس کنجوس انسان کے ساتھ 50,000 میں ہرگز نکاح نہیں کروں گی۔ منازع نے بڑا مضبوط وار کیا تھا، شہر والا اپارٹمنٹ میرے نام ہے اور وہ میری پسندیدہ جگہ ہے، میں نے اس کا انٹیریئر اپنی مرضی سے لاکھوں روپے کا ڈیزائن کروایا، اور تم اس پر قبضہ کرنے کا کیسے سوچ سکتی ہو؟ تم جیسی جنگلی لڑکی کو میں اس دروازے کے پاس بھی نہ بھٹکنے دوں۔ بازل غصے سے چلائے تو ظہیر صاحب کی طرف مڑ، ڈیڈ، آپ نے سنا یہ لڑکی کتنی لالچی ہے؟ اسے مجھ سے نہیں بلکہ میرے اپارٹمنٹ سے پیار ہے، اور یہ سب اسی لیے کر رہے ہے کہ میں میری سب سے قیمتی چیز ہاتھ صاف کر سکے۔ میں اپارٹمنٹ کسی صورت اس چڑیل کو نہیں دوں گا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے بازل، وہ اپارٹمنٹ اب منازع کا ہوگا۔ اگر وہ حق مہر میں مانگ رہی ہے تو تمہیں دینا پڑے گا، کیونکہ تم نے بھی اسے مجبور کیا ہے کہ تم سے کوئی سیکیورٹی مانگے۔ ظہیر صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جس پر بازل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور منازع کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ لیکن ڈیڈ، وہ کروڑوں کا اپارٹمنٹ ہے، اور یہ تو وہاں جا کر میرے سارے مہنگے فرنیچر کا ستیہ ناش کر دے گی، ہر چیز تباہ کر دے گی۔ بازل نے اپنی صفائی دینی چاہی، پر ظہیر صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ اگر تم نے اپارٹمنٹ منازع کے نام کر دیا تو میں تمہیں مری والا بنگلہ تمہارے نام کر دوں گا۔ بس اب اس بحث کو ختم کرو اور باہر جا کر قاضی صاحب کا انتظار کرو، جو بس پہنچنے والے ہیں۔ ظہیر صاحب کی اس بات پر بازل کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی، اور اس کا سارا غصہ جیسے چھا کی طرح بیٹھ گیا۔ مری والا بنگلہ تو اس اپارٹمنٹ زیادہ قیمتی تھا، اور اس کی لوکیشن تو پورے مری میں سب سے بہترین تھی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے منظور ہے، آپ مری والا بنگلہ میرے نام کر دیں، میں وہ اپارٹمنٹ اس بکھارن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔
ऐसे भी वहां रह रह कर मैं बोर हो गया था। अब मरी के बंगले में अपनी वीकेंड पार्टीज किया करूंगा। बादल ने मुनज़्ज़ा को चिढ़ाते हुए कहा, जिस पर मुनज़्ज़ा का खून खौलने लगा। पर वो दिल ही दिल में बेहद खुश थी कि उस शहर के बंगले को बीच करोड़ों का अपार्टमेंट मिल गया है और वो वहां अपनी मर्जी से रहेगी और बादल का कोई अमल दखल ही नहीं होगा। थोड़ी देर में काजी साहब को घर बुला लिया गया और लाउंज में निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। बेगम राइना अपनी बेटी को दुल्हन बने देखकर खुशी से रो रही थी और बार बार उसका माथा चूम रही थी, जबकि बेगम सलमा जो कि वाजिल की वालिदा थी वो भी इस अचानक होने वाले निकाह पर हैरान तो थी, पर वो भी जहीर साहब के फैसले आगे सर झुकाए खामोशी से मिठाई के डिब्बे खोल रही थी। मुनज़्ज़ा ने बेगम सलमा को दिया हुआ सुर्ख रंग का एक खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था और बाजिल अपने उस ब्लैक सूट में मलबूस था जिसमें वो सुबह ऑफिस से आया था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे और उनकी आंखों में चलने वाली वो तलवारें वहां मौजूद हर शख्स महसूस कर सकता था। काजी साहब ने गला खनकार कर निकाह पढ़वाना शुरू किया। मुनज़्ज़ा की तरफ देखकर वो पूरी संजीदगी से पूछा, मुनज़्ज़ा सुलेमान बिनते सुलेमान अहमद, क्या आपको बाजिल शाहवल्द जहीर शाह के साथ निकाह कबूल है? मुनज़्ज़ा ने एक लम्हे के लिए बाजिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में वाज़ेह पैगाम था कि वो अभी भी मुकर जाए, पर मुनज़्ज़ा ने उसे जलाने के लिए नहायत नखरे और गुरूर से काजी साहब की तरफ देखा और बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उसके बाद काजी साहब ने अपना रुख बाजिल की तरफ किया और उससे संजीदा लहजे में पूछा, बाजिल शाह वल्द जहीर शाह, क्या आपको मुनज़्ज़ा सुलेमान बिनते सुलेमान अहमद के साथ निकाह कबूल है? बाजिल ने अपने बाप जहीर की तरफ देखा। बादल ने खास्ता गहरा सांस लिया और बोला, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और यूं वो दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन और मियाँ बीवी के बंधन में बन चुके थे। निकाह के बाद ड्राइंग रूम में खामोशी छाई हुई थी, जिसे जहीर साहब ने गला खनकार कर तोड़ा और सोफे पर बैठे उन दोनों ने जिद्दी इंसानों को बगूर देखने लगे जो अभी भी एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। सब मेरी बात गौर से सुने और खास तौर पर तुम दोनों, बाजिल और मुनज़्ज़ा। अब जब तुम दोनों का निकाह हो चुका है तो कल ही तुम दोनों शहर वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। जहीर साहब के इस अचानक ऐलान पर बाजिल ने मुंह खोलकर कुछ कहना चाहा, पर जहीर साहब ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। डैड, मैं वहां अकेला रहता आया हूँ और अब इस मुसीबत के साथ नहीं, मैं नहीं रह सकता। बाजिल ने मुनज़्ज़ा की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मुनज़्ज़ा ने दो जवाब दिया, बस कर दो तुम दोनों, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम दोनों का निकाह हो गया, इसलिए इस बात पर कोई तकरार नहीं बनती। जहीर साहब ने कदरे ऊंची आवाज में कहा, दरअसल मैं सलमा और रायना को लेकर कल रात की फ्लाइट से उम्रे की सावत हासिल करने जा रहा हूँ और हमारी गैर मौजूदगी में तुम दोनों वहीं शहर वाले अपार्टमेंट में रहोगे। जहीर साहब ने अपनी बहन और बीवी की तरफ देखते हुए कहा, जो खामोशी से सर हिला रही थी। उम्रे पर मामू जान इतनी अचानक, आपने पहले तो जिक्र नहीं किया कभी। मुनज़्ज़ा ने हैरत से पूछा, हाँ बेटा, बस बुलावा आ गया तो हमने सोचा कि ताखीर क्यों करे। जहीर साहब ने बात बनाई, दरअसल वो उम्रे के बाद सीधा दुबई जाने वाले थे। हाँ, उनके दोस्त डॉक्टर और मुकीम थे और वही बेगम राइना के कैंसर का इलाज होना था, पर ये बात वो किसी को बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे और वैसे भी उस खबर को छुपा कर अपनी बहन का इलाज करवाना चाहते थे। बेगम सलमा ने आगे बढ़कर बाजिल और मुनज़्ज़ा के सरों पर प्यार दिया, नरमी से बोली, देखो बच्चों, अब तुम दोनों एक रिश्ते में बन चुके हो और हमारी गैर मौजूदगी में एक साथ ही रहना, इसलिए पीछे से लड़ाई झगड़ा मत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ओके? बेगम राइना मैंने भी अपनी बेटी का माथा चूमा और नमाकों से मुस्कुराते बोली, मेरी बच्ची अब समझदार हो गई है, मुझे उम्मीद है तुम बाजिल का इस रिश्ते का मान रखोगी। बाजिल और मुनज़्ज़ा दोनों ने ही नजरें चुरा ली क्योंकि वो दोनों अंदर से एक दूसरे को कच्चा चबाने के इरादे कर रहे थे। चले बेगम, अब आप दोनों पैकिंग कर लें, तैयारियां करें, कल दोपहर तक हमें हर हाल में निकलना होगा ताकि वक्त पर पहुंच सके। जहीर साहब ने अपनी बीवी और बहन को वहां से जाने का इशारा किया तो दोनों सर हिलाते अपने अपने कमरों की जानिब चले गए। उनके जाने के बाद ड्राइंग रूम में एक बार फिर से खामोशी छा गई, जिसे जहीर साहब ने गला खनका कर दौड़ा, बैठो तुम दोनों, मुझे एक और जरूरी बात करनी है। जहीर साहब ने वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा तो बाजिल और मुनज़्ज़ा जो जाने के लिए मुड़ रहे थे, तो बाजिल और उनके सामने वो बैठ गए। अब क्या रह गया डैड? बाजिल ने बेजारी से सोफे के बुज से टेक लगाते हुए कहा, मुझे अपना वारिस चाहिए। जहीर साहब की अचानक और दो टोक बात पर वो दोनों सुन हो गए। मुनज़्ज़ा की तो जैसे सांसें रुक गई और बाजिल को लगा जैसे किसी ने दिमाग पर उसकी हथौड़ा मार दिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम दोनों की बचकाना नखरे उठाता रहूं।
तुम दोनों अब मियाँ बीवी हो, मेरी शर्त कल तुम कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों के पास सिर्फ 3 माह है और इन 3 माह के अंदर अंदर मुझे खानदान के वारिस की खुशखबरी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो याद रखना, जो कुछ भी तुम दोनों के नाम किया वो वापस ले लिया जाएगा। जहीर साहब ने इंतहाई संजीदगी से अपना आखिरी बार किया और इन दोनों के चेहरे की उड़ती हवाइयां देखकर भी उनके तासुरात नहीं बदले। डैड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरी जान मांग ले तो मैं हंसी खुशी दे देता, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत लगाएं। बाजिल ने शदीद सदमे और बेबसी के आलम में अपने बाप को देखा। उसके लहजे में बासिया चिंचलाहट थी। मुझे तुमसे भी यही उम्मीदें हैं बासिल, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं किसी से ये सब कहूंगा? जहीर साहब जरा से जज्बाती हो गए। मुनज़्ज़र, जो ये सब सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी, उसने खामोशी से अपना सर झुका लिया और अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में बेदर्दी से उलझाने लगी। वो इस कदर गहरी खपकी का शिकार थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका। बड़ी दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि मैं तो इस मगरूर इंसान की शक्ल भी देखना गवारा न करती, मामू जान भी ना। बट आई नो ये सब तो बस एक डरावना ख्वाब है ताकि हम दोनों डर कर एक हो जाए। पर मैं भी मुनज़्ज़ा हूँ, इस खड़ूस को तो पास भी ना आने दूं। वो दिल में खुद से अहद कर रही थी और चुपचाप बैठी फर्श को घूरती रही। जो कहना था कह दिया, फैसला तुम दोनों के हाथ में है। 3 माह बाद अगर गुड न्यूज ना मिली तो सड़क पर आने के लिए तैयार रहना। जहीर साहब अपनी जगह से उठे और बाहर की तरफ चल दिए, जबकि बाजिल अपना सर पकड़कर बैठ गया और मुनज़्ज़ा वहां से उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ भागी। अगले दिन एयरपोर्ट पर काफी जज्बाती माहौल था। मुनज़्ज़ा अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। बेगम रायना भी अपनी बेटी को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। वो जानती थी कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, पर वो अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं लाना चाहती थी और अपने आंसुओं को बमुश्किल रोके हुए थी। मामा, अब जल्दी वापस आ जाइएगा, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगेगा ना? मुनज़्ज़ा ने सिसकते हुए कहा और बाजिल को देखा जो कुछ फासले पे खड़ा जहीर साहब से हदायत ले रहा था। पागल लड़की, तुम्हारा शौहर है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करना और खुश रहना, अच्छा? बेगम रायना ने उसका माथा चूमा और जहीर साहब के साथ अंदर की तरफ चल दी, जबकि बाजिल भी अपने वालिदैन से मिलकर अपनी पलकों को तेजी से चिपक अपने आंसू छुपा गया। वापसी के सफर में गाड़ी में खामोशी थी। बाजिल ड्राइविंग कर रहा था और मुनज़्ज़ा शीशे से बाहर देख रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा उदास था। दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई, यहाँ तक कि वो अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंच गए। लिफ्ट से अपार्टमेंट का रास्ता भी दोनों ने अजनबियों की तरह तय किया और जैसे बाजिल ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ और पीछे आती मुनज़्ज़ा को रुकने का इशारा किया। देखो मोहतरमा, यहाँ काफी कमरे खाली हैं, तुम जहाँ मर्जी जाकर अपना बिस्तर बिछा लो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे और मेरे कमरे से दूर रहना। बाजिल ने उसे सख्त वार्निंग दी और हाथ के इशारे से पूरा अपार्टमेंट दिखाया, जो कि वाकई बहुत शानदार और पुरतईश था। मुनज़्ज़ा ने अपना कंधा झुकाकर उसे तनकीदी निगाह से घूरा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाने पकाने आई हूँ या तुम्हारे कमरे के बाहर पहरा दूंगी? तुम मुझसे दूर रहना, और वैसे भी तुम्हारे करीब आने के लिए और दिल और चेहरा दोनों प्यारे होने चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ा कि तुम्हारे पास एक भी नहीं है, इसलिए अपनी ये खाम ख्याली दिल से निकाल दो। मुनज़्ज़ा ने भी कोरा जवाब दिया और हाथ बांध कर खड़े हो गई। खुद को आईने में देखा है तुमने, जो मुझे खूबसूरती के ताने दे रही हो? तुम जैसी जिद्दी और झगड़ालू लड़की को तो कोई ख्वाब में भी ना देखे। बस सारी जिंदगी अदालतों में काले कोट पहनकर लोगों से बहस करती रहना, यही तुम्हारा काम है। बाजिल ने दांत पीसते उसे जली कुटी सुनाई। हाँ, तो कोई तो काम करती हो ना वहां, तुम्हारी तरह आराम और अय्याशी तो नहीं करती। मुनज़्ज़ा ने भी तुर्की में तुर्की जवाब दिया और अपना बैग उठाकर सामने वाले गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई, जिसे उसने अपना मस्कन बनाने का इरादा कर लिया था। बाजिल भी पैर पटकता हुआ अपने कमरे की जानिब चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। और गुजरने के साथ उन दोनों की रूटीन बिल्कुल अलग हो गई। बाजिल अपने बाप के जाने के बाद बिजनेस संभालने में इतना मसरूफ हो गया कि वो सुबह सवेरे निकल जाता और रात के वापस आता, जबकि मुनज़्ज़ा भी अपनी वकालत की फील्ड में माहिर पानी जाती थी। वो सारा दिन अपने केसेस की तैयारी और अदालतों के चक्करों में उलझी रहती। दोनों सारा दिन घर से बाहर रहते और शाम में जब वापस आते तो बातचीत ना होने के बराबर थी। पर जब भी सामना होता तो उनकी वो नोक झोंक शुरू हो जाती। तुमने फिर से अपनी ये मोटी मोटी किताबें लाउंज में बिखेर दी हैं? ये घर है, कोई यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। बाजिल एक शाम थक हार कर घर आया तो सोफे पर फाइलों का ढेर देखकर उसका पारा हाई हो गया। तो तुम इन फाइलों को नजरअंदाज करके साइड से गुजर जाओ। ये अपार्टमेंट अब मेरा है, तो मेरी चीजें जहां चाहे बिखरी रहे। मुनज़्ज़ा ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए बगैर लापरवाही से जवाब दिया। ये अपार्टमेंट अभी सिर्फ कागजों पर तुम्हारा है,
वो 3 माह वाली शर्त याद है ना तुम्हें? ये वापस मेरे पास ही आ जाएगा, इसलिए ज्यादा मालिक बनने की जरूरत नहीं है। बादल ने मुस्कुराते उसे चुराया तो मुनस्सा उसे आग बबूला नजरों से देखने लगी। मैं किसी सूरत तुम जैसे इंसान के आगे ना नहीं झुकने वाली। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मामू जान ने सिर्फ हमें डराने के लिए वो बात की थी, इसलिए कोई खुशफहमी मत माल पालना। मुनस्सा ने गुस्से से फाइलें समेटी और अपने कमरे की जानिब चली गई, जबकि बादल की शक्ल देखकर दिल ही दिल में महफूज होने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शादी को 2 माह का अरसा गुजर गया और इस दौरान उन दोनों के बीच हल्की फुल्की दोस्ती ने जन्म ले लिया था। गो कि वो अभी एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, पर वो पहले से जैसी करवाहट नहीं रही। एक दूसरे से बहस करना और फिर कभी कभी छोटी छोटी बात पर उलझना और थोड़ा थोड़ा करीब आकर दोबारा अपनी अना के खौल में छुप जाना उनका मामूल बन गया था। दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल में कहीं ना कहीं नरम गोशा रखने लगे थे, मगर जुबान पर सिर्फ तंज और तकरार ही रहती थी। एक इतवार की दोपहर मुनस्सा किचन में शेल्फ के ऊपर वाले केबिनेट से कॉफी का जार निकालने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। उसने एक छोटा सा स्टूल रखा और उस पर चढ़कर जैसे ही जार को पकड़ा, उसका पांव फिसल गया और उसके मुंह से बेख्तियार बादल का नाम निकला। पर उससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, बादल ने उसे अपने बाजुओं में दबोच लिया। बादल का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए। मुनस्सा को बादल के दिल की धड़कन तेज अपने दिल के साथ धड़कती महसूस हो रही थी। फिया से बेखबर हो गए। बादल की नजरें उसके चेहरे पर ठहरी हुई थी, जहां बहुत मासूमियत थी जिसे उसने पहली बार इतने करीब से महसूस किया। कुछ देर इसी तरह गुजरने के बाद मुनस्सा ने हड़बड़ाकर खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और अपने कपड़े दुरुस्त करने लगी, जबकि बादल भी गला खनकार कर पीछे हट गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुनस्सा ने अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए कदरे ऊंची आवाज में पूछा। मैं तो पानी पीने आया था, और तुम्हें गिरता देखकर बचा लिया, वरना तुम्हारी हड्डियां आज जरूर टूटती। बादल ने भी अपनी धड़कनों को काबू करते हुए तंजी अंदाज अपनाया। मैं खुद संभल सकती थी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। मुनस्सा ने मुंह बनाते हुए कॉफी का मग तैयार किया और उसमें से एक घूंट भरकर मजे से आंखें बंद कर ली। बादल जो उसे ही देख रहा था, उसके मुंह से भी पानी आ गया। कैसी बनी है? बादल ने हिचकिचाते हुए पूछा। बहुत कमाल की, तुम पीना चाहोगे? मुनस्सा ने मग उसकी तरफ बढ़ाया। बादल ने बिना कुछ कहे मग उसके हाथ से लिया और एक घूंट पड़ा। वाकई काफी बहुत जबरदस्ती, पर उसने कंधे उचकाए। गुजारा है, इतना कोई खास टेस्ट नहीं है। बादल ने मग वापस किया और किचन से बाहर चला गया, पर उसके होंठ पर मुस्कुराहट थी और मुनस्सा भी उसे जाते देखकर मुस्कुराती थी। उनकी एक खट्टी मीठी रूटीन चलनी शुरू हो चुकी थी। बादलों की गर्ज और बिजली की चमक ने मौसम को खासा खौफनाक बना दिया था। बादल लाउंज में सोफे पर बैठा बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था। रात के 9 बज चुके थे और मुनस्सा का अभी तक कुछ पता नहीं था। कहाँ रह गई ये लड़की? बादल ने झंझलाकर अपना फोन उठाया और 10वीं बार मुनस्सा का नंबर मिलाया, पर दूसरी तरफ से मुसलसल एक ही मशीनी आवाज आ रही थी कि आपका मिलाया हुआ नंबर बंद है। उसने गुस्से से फोन सोफे पर पटका और लाउंज में चक्कर काटने लगा। उसने खुद ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है, पर बाहर होती तेज बारिश और मुनस्सा का बंद फोन उसे अंदर से डरा रहा था। इस लड़की को जरा एहसास नहीं है कि घर में कोई इसका इंतजार कर रहा होगा। कम से कम फोन तो ऑन कर सकती है ना, ताकि इंसान को तसल्ली तो हो। वो भी खुद से बुरबुरा रहा था कि अचानक अपार्टमेंट के मेन डोर की लॉक खुलने की आवाज आई। बादल तेजी से मुड़ा, दरवाजा खुला तो सामने मुनस्सा खड़ी थी, जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल भीग चुकी थी। उसे कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो सर्दी से बुरी तरह से कांप रही थी। कहाँ थी तुम? बादल तकरीबन पर चिल्लाया था। उसकी आवाज में छुपा हुआ डर और गुस्सा दोनों वाज़ेह थे। मैं वो बाहर बारिश की वजह से। मुनस्सा ने हकलाते हुए अपना भीगा हुआ बैग साइड टेबल पर रखा और अपने गीले बालों को माथे पर हटाया। मुझे नजर नहीं आ रहा कि बाहर बारिश हो रही है। मेरा सवाल ये है कि तुम इतनी रात के तक कहाँ फिर रही थी और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बादल ने 2 कदम आगे बढ़कर उसे घूरा। मैं कोई फिर नहीं रही थी, कहाँ पर गई हुई थी। निकलते हुए देर हो गई थी और ऊपर से बारिश शुरू हो गई। कोई कैब या रिक्शा नहीं मिल रहा था। आधा घंटा बस स्टॉप पर खड़ी रही और फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए बंद हो गया। मोनाजा ने भी झिंझलाकर जवाब दिया और सर्दी से अपने बाजुओं को रगड़ा। तो क्या वहां कोई इंसान नहीं था जिसको फोन मांगकर तुम मुझे कॉल कर सकती? कम से कम मुझे बता दो देती कि तुम कहाँ फंसी हो। बादल का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, हालांकि उसे सही सलामत देखकर अंदर से सुकून में आ चुका था। मैं तुम्हें क्यों कॉल करती? तुम क्या मुझे वहां से पिक करने आते? तुम तो अपने एसी वाले ऑफिस में मजे से बैठे होके। तुम्हें क्या लगेगा कि तुम किस हाल से बाहर खड़ा है कोई?
मुनज़्ज़ा ने तंज़िया अंदाज में कहा, हाँ मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें पिक करने का, पर डैड ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर छोड़ा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैंने क्या जवाब देता। बाजिल ने उसे खफत मिटाने के लिए पूरा जहीर साहब का फौरन नाम लिया। मुझ पर ये शौहरों वाले अजब रोब ना मत डाला करो, समझे। हक महर में सिर्फ ये अपार्टमेंट मिला था, कोई गाड़ी नहीं मिली थी जो मैं घर पर पहुंची होती। अगर इतनी ही फिक्र है तो मुझे रोज पिक एंड ड्रॉप कर दिया करे। मुरज़ा ने उसे खूब खड़ी खड़ी सुनाई और पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। बाजिल ने उसे रोका और अपनी जेब से उसे दूसरी गाड़ी की चाबी निकाली और मुनज़्ज़ा की तरफ फेंकी। मुनज़्ज़ा ने बौखलाकर चाबियां कैच की और हैरत से बाजिल को देखा। ये क्या है? उसने नासमझी से पूछा। मेरी गाड़ी की चाबी है, कल से तुम कैब या रिक्शे पर धक्के नहीं खाओगी। ये गाड़ी तुम इस्तेमाल करोगी और आइंदा मुझसे वक्त पर घर न आने का कोई बहाना नहीं मुझे चाहिए। बाजिल ने इंतहाई संजीदगी से कहा और बिना उसकी तरफ देखे अपने कमरे में चला गया। हकीकत में उसकी हालत देखकर इनसिक्योर हुआ था और डर गया था, पर अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करना चाहता था। मुनज़्ज़ा हैरत से कभी चाबियों और कभी उसके बंद दरवाजे को देखती रही और उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई और दिल ही दिल में उसकी फिक्र खुश होती रही थी और अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन सुबह मुनज़्ज़ा बड़े खरूर से बाजिल की दी हुई गाड़ी लेकर निकली थी। उसे ड्राइविंग तो आती थी, पर वो आज कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो रही थी। कचहरी में वापसी पर एक सिग्नल पर उसने ब्रेक लगाने में जरा सी देर कर दी और गलती से गाड़ी सीधा आगे वाली गाड़ी के पंपर पर जा टकराई। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? और वो खड़ूस मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुनज़्ज़ा ने गाड़ी से बाहर निकलकर अगला हिस्सा देखा, जिसका एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह से पिचक चुका था और हेडलाइट पे टूट चुकी थी। वो किसी न किसी तरह रोती धोती गाड़ी को एक करीबी मैकेनिक के पास ले गई। भैया जरा देख कर बताएं इस पर कितना खर्चा आएगा, मुझे ये आज ही ठीक करवानी है। मैकेनिक ने गाड़ी का बगौर मुआयना किया और बोला, बाजी इसका तो काफी नुकसान हो गया है, बम्पर भी ना डलेगा और लाइट भी कम से कम 30,000 रुपए का खर्चा है और 2 दिन लगेंगे। 30,000? मुनज़्ज़ा की तो जैसे चीख ही निकल गई। इतने पैसे? भैया मैंने सिर्फ इसे ठीक करवाना है। बाजी ये महंगी गाड़ी है, इसके पार्ट्स इतने के ही आते हैं, करवानी है तो बताए। मक्कारी से कहा। मुनज़्ज़ा ने अपना पर्स चेक किया तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने हार मानकर गाड़ी वापस स्टार्ट की और दिल में दुआएं मांगती अपार्टमेंट की जानिब चल दी। उसने गाड़ी को कार पोर्च की सबसे अंधेरे कोने में खड़ा किया और दबे कदमों अपार्टमेंट के अंदर गई। बाजिल लाउंज में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मुनज़्ज़ा को अंदर आते देखकर उसने सर हिलाया, पर मुनज़्ज़ा ने इससे नजरें चुराई। सीधा जाकर बाजिल के सामने खड़ी होगी और अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। क्या है? बाजिल ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजर हटाते उसे देखा। मुनज़्ज़ा ने गहरा सांस लिया। बात सुने, मुझे 30,000 रुपए चाहिए। उसने धीरे से और नहायत मासूमियत से कहा। क्यों? 30,000 का क्या करना है? तुमने अभी तो परसों तो तुमने मुझसे ग्रोसरी के पैसे लिए थे। बाजिल ने हैरानी से पूछा। आपकी गाड़ी ठोक दी, उसे मरम्मत कराना है। मुनज़्ज़ा ने एक सांस में बम फोड़ा। व्हाट? बाजिल एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और लैपटॉप गिरते गिरते बचा। वो फौरन उठकर बाहर की तरफ भागा और मुनज़्ज़ा भी डरते डरते उसके पीछे गई। पार्किंग में खड़ी अपनी चमकती हुई गाड़ी का हशर देखकर बाजिल का मुंह खुले का खुला रह गया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? मेरी न्यू कार ठोक दी। बाजिल पूरी ताकत से उस पर चिल्लाया। उसकी आंखों में जैसे शोले निकल रहे थे। जहाज तो था नहीं कि आपके पास, वरना वही ठोकती थी। मुनज़्ज़ा की तरफ से इंतहाई मुतमईन और बेसख्ता जवाब आया, जिस पर बाजिल को लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम मैंने तुम्हें इतनी महंगी गाड़ी इसलिए दी कि तुम इसका ही हशर करोगी? बाजिल ने गुस्से से अपना माथा पीट लिया। तो मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? वो सिग्नल पर एक अहमक ने अचानक ब्रेक लगा दी, तो मैं क्या करती? इतनी सी तो लगी है, आप 30,000 दे, मैं अभी जाकर ठीक करवा लेती हूँ। मुनज़्ज़ा ने बड़े आराम से अपनी सफाई पेश की। बस इतनी सी लगी है? अंधी हो तुम, पूरी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम निकलो यहाँ से, निकलो फौरन मेरे घर से। तुम एक सेकंड में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाजिल ने अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ उसे इशारा करते हुए चीख कर कहा। मुनज़्ज़ा ने बजाय डरने के नहायत नखरे से हाथ नचाया। अरे ऐसे कैसे निकल जाओ? भूल गए मामूजा ने निकाह के बाद ये अपार्टमेंट मेरे नाम कर दिया था। ये अब आपका घर नहीं, मेरा घर है, इसलिए अगर किसी को निकलना है तो वो आप हैं। बाजिल उसकी डिटाई पर अपने बाल नोचने लगा। तुमसे बड़ी एहसान फरामोश ना मेरी लड़की आज तक नहीं देखी। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपनी गाड़ी दी और तुम उल्टा मुझे ही मेरे घर से निकाल रही हो। अचानक एक जानी पहचानी और बारी आवाज उनके कानों में गूंजी। एक नहीं
تم دونوں اس گھر سے جاؤ گے، اور وہ بھی اسی وقت۔ دونوں ایک جھٹکے سے مڑے۔ اپارٹمنٹ میں کھلے دروازے پر ظہیر صاحب کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر شدید مایوسی اور غصہ تھا۔ ان کی اچانک آمد پر بازل اور منزہ دونوں کی اوسان فتح ہو گئے۔ وہ دونوں نے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ڈیڈ آپ؟ بازل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مامو جان آپ کب آئے؟ منزہ نے بھی اپنی چوری پکڑے جانے پر تھوک نگلتے پوچھا۔ میں تم دونوں کو یہاں یہی سوچ کر چھوڑ کے گیا تھا کہ شاید ایک ساتھ رہ کر تم دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو جائے، تم دونوں ایک ہو جاؤ گے، پر تم دونوں تو ابھی تک اسی مقام پر ہو، بچوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ ظہیر صاحب اندر داخل ہوئے اور غصے سے ان دونوں کو باری باری گھورا۔ کیا تم دونوں بھول رہے ہو کہ نکاح کس شرط پر ہوا تھا؟ میں تم دونوں پر اعتبار کیا تھا، پر تم دونوں نے مجھے شدید مایوس کیا ہے۔ یاد رکھو بس 1 ماہ باقی ہے، اس کے بعد سب کچھ واپس لے لیا جائے گا۔ بازل اور منزہ دونوں ہی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ظہیر چاہے صاحب اچانک واپس کیوں آ گئے، اور وہ بھی اس نازک موقع پر جب وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے در پر تھے۔ ڈیڈ، یہ سب اس نے شروع کیا تھا۔ میں نے اسے اپنی قیمتی گاڑی دے دی، اس نے لاپرواہی سے پوری گاڑی تباہ کر دی، الٹا مجھے ہی۔ بازل نے دبی دبی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، پر ظہیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس کر دو بازل، میں مزید کوئی بحث نہیں سننا چاہتا، مجھے تم دونوں سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہاں کر تم دونوں کو خوش دیکھوں گا اور منزہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا، اور تم دونوں کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا ہے۔ ظہیر صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو منزہ نے حیرت سے سر اٹھایا۔ دبئی؟ پر مامو جان، میں دبئی کیوں جاؤں گی؟ اور ماما کیسی ہے، وہ آپ کے ساتھ واپس نہیں آئی؟ منزہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا، پر ظہیر صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سے گریز کیا اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ٹھیک ہے، بس کچھ دن اور وہاں رہیں گی، سلمیٰ انہی کے پاس ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ بازل اور منزہ ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھنے لگے، کیونکہ اب ان کے پاس ظہیر صاحب کے ہوتے ایک کمرے میں ساتھ رہنے کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور پورے اپارٹمنٹ میں سناٹا تھا۔ بازل اپنے کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی ٹہل رہا تھا کہ اچانک ظہیر صاحب نے اسے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بازل دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ظہیر صاحب بیڈ کی پٹی پر بیٹھے اسے ہاتھ میں بیگم رائنا کے کوئی میڈیکل رپورٹ پکڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈیڈ، آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بازل نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے پہلی بار اپنے مضبوط باپ کو اس طرح ٹوٹتے اس نے دیکھا تھا اور شدید دھچکا لگا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے بازل، سب ختم ہونے والا ہے۔ میری بہن موت کے منہ میں کھڑی ہے اور میں اپنی ساری دولت اور وسائل کے باوجود اسے نہیں بچا پا رہا۔ ظہیر صاحب کی آواز پر آ گئی اور ان کے آنسو چھلک پڑے۔ ڈیڈ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھپھو کو کیا ہوا ہے؟ بازل کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ اسے اپنی پھپھو سے بہت پیار تھا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کینسر ہے اسے، اور وہ آخری سٹیج کا۔ دبئی میں ہم نے کیمو تھراپی شروع کروا دی ہے، اور ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا۔ ظہیر صاحب نے روتے ہوئے سچائی بیان کی تو بازل تھک سے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ پھپھو کو کینسر ہے اور آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے اور منزہ سے چھپا کے رکھی، اور وہاں پھپھو موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ بازل کا دل شدید ندامت اور تکلیف سے بڑھ گیا۔ اسے اپنی اور منزہ کی آنے والی لڑائی پر غصہ آنے لگا۔ میں نے یہ بات اس لیے چھپائی بازل، کیونکہ رائنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیماری کا سن کر تم دونوں کی زندگی پر کوئی اثر پڑے۔ وہ بس مرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ وارث والی شرط رکھی تھی تاکہ تم دونوں مجبوری میں ہی صحیح اور ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ۔ اور آج تم دونوں کو اس طرح لڑتے دیکھ کر میری ساری امیدیں ٹوٹ گئی، اور مجھے ڈر ہے کہ رائنا کے جانے کے بعد میری بچی منزہ بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے بازل، اگر تم نے اسے سچے دل سے نہ اپنایا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ ظہیر صاحب نے بازل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بازل کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ نکلے۔ اس نے اپنا ہاتھ ظہیر صاحب کے ہاتھ پر رکھا اور مضبوطی سے دبایا۔ آپ فکر نہ کرے ڈیڈ، میں پھپھو کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے ان کا علاج کروائیں گے نا۔ اور جہاں تک منزہ کی بات ہے تو میری بیوی ہے، اور اس کی ہر خوشی ہر غم میری ذمہ داری ہے۔ نہیں لڑوں گا میں اس سے اب، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ بازل نے انتہائی سنجیدگی اور پختہ ارادے کے ساتھ کہا تو ظہیر صاحب نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لے اور ڈھیروں دعائیں دی۔ بازل جب اس کمرے سے باہر نکلا تو وہ وہی والا بازل نہیں تھا
जो चंद घंटे पहले गाड़ी के टूटने पर चीख रहा था, बल्कि अब वो एक ऐसा शौहर था जिसे अपनी बीवी के आने वाले दुख का शिद्दत से एहसास हो रहा था और उसे हर सूरत अपने साए में छुपा लेना चाहता था। बादल बोझल कदमों के साथ अपने मास्टर बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा, जहां मुनज़्ज़ा मौजूद थी। बादल ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुनज़्ज़ा सोफे पर बैठी किसी केस की मोटी सी फाइल को खोले पूरी तवज्जो से उसे पढ़ने में मगन थी। उसने अपने बाल एक कैचर में समेट रखे थे और चेहरे पर थकन थी, क्योंकि बादल को आज पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस हुई। मुनज़्ज़ा की जगह सोफे पर तय पाई थी। बादल ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया, फिर उसकी कुंडी भी लगा दी। कुंडी के पास पर मुनज़्ज़ा ने चौंक कर सर उठाया और बादल को दरवाजे के पास खड़े देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। ये दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हैं? मुनज़्ज़ा ने चौंक कर सर तहजे में कहा। उसे अभी तक शाम वाली बात का गुस्सा था और वो किसी तरह से बादल से सीधे मुंह बात करने के मूड में नहीं थी। पर बादल के चेहरे पर आज कोई तंज नहीं था, बल्कि गहरी खामोशी थी जो मुनज़्ज़ा को उलझा रही थी। बादल खामोशी से चलता बैठ के करीब आया। उसने मुनज़्ज़ा को देखा जो कि बैठे से घूर रही थी। बादल का दिल एक बार फिर से दर्द से सुकड़ गया। ये नासमझ लड़की नहीं जानती कि इसकी माँ पर क्या गुजर रही है। उसने अपने जज्बात को चेहरे पर नहीं आने दिया और अपने मखसूस अंदाज में बोला, बंद करो ये सब और बिस्तर पर आ जाओ। बादल ने कमांडो की तरह ऑर्डर दिया। मुनज़्ज़ा की आंखें हैरत से भर गई। उसने अपनी फाइल साइड टेबल पर पटक दी। आपका दिमाग तो दुरुस्त है, क्यों आऊं मैं बिस्तर पर? आपको पता है ना कि मेरी जगह ये सोफा है और आपकी जगह वो बेड है। फिर इस बात का मतलब? मुनज़्ज़ा गुस्से से भड़क उठी और अपने दुपट्टे को दुरुस्त कर दे उसे शोलाजन नजरों से देखा। खुद आओगी या उठा कर लाऊं? बादल ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दे बड़ी मायने खेजी से पूछा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मुनज़्ज़ा के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई और उसे खतरे का एहसास होने लगा। खबरदार, जो मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं कोई डरने वाली लड़की नहीं है। मुझे अभी जाकर मैं मामू जान को ना शिकायत लगाऊंगी आपकी। मुनज़्ज़ा ने सोफे पर से छलांग लगाई और 2 कदम पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश आ चुकी थी जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्या कहोगी डैड को? जाकर यही ना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे फराइज याद दिला रहा है और निवारिस देने के लिए भी बेताब है। बादल के होंठों पर शरारती सी मुस्कुराहट उभरी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने चलते चलते अपने कोट के बटन खोले, उसे उतार कर बेड पर फेंका। मुनज़्ज़ा की घबराहट बढ़ती जा रही थी और वो मजीद पीछे हटी और फिर उसकी पीठ दीवार से जा लगी। बादल रुका नहीं, बल्कि वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। बादल को शर्ट रिमूव करते देख और उसके चौड़े सीने और मसल्स पर नजर पड़ते मुनज़्ज़ा के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसका गला खुश्क हो गया और वो बुरी तरह से पकड़ा गई। तुम तुम पागल हो गए हो क्या? दूर हटो मुझसे, मैं कह रही हूँ, दूर हटो। मुनज़्ज़ा ने हकलाते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की, पर बादल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। किसी पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा था। बादल ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर मुनज़्ज़ा की कमर के गिर्द लपेटा और उसे एक ही झटके में अपने सीने के साथ लगा लिया। मुनज़्ज़ा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और उसने घबरा कर बादल के सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए। बादल के जिस्म की हरारत और उसकी तेज धड़कनें मुनज़्ज़ा को अपने हाथों की पूरों से भी महसूस हो रही थी। सुना नहीं तुमने? बाबा जान ने क्या कहा है? उन्होंने इस महीने वारिस सुनानी है, वरना सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। बादल ने झुककर उसके कान के बिल्कुल करीब सरगोशी की तो मुनज़्ज़ा के पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। वो चाहकर भी खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से आजाद नहीं कर पा रही थी। उसे बादल की आंखों में देखा जहां अजीब सा नशा और खुमार था, जिसने मुनज़्ज़ा के जहन को मुकम्मल तौर पर सुन कर दिया। छोड़े मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आपको जायदाद की फिक्र है, बस मैं आपकी इन हरकतों में नहीं आने वाली। मुनज़्ज़ा ने अपना साथ आखिरी हथियार इस्तेमाल कर से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, पर बादल ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। और हमारे बीच कोई प्यार नहीं है कि हम बच्चा पैदा करें? मुनज़्ज़ा ने रूहानी होकर उसे देखा तो बादल ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, पागल, प्यार करेंगे तो बच्चा आएगा ना। और वैसे भी मुझे तुम जैसी जिद्दी और झगड़ालू वकील को अपने प्यार में पागल करने का बड़ा शौक चढ़ा है। बादल के अल्फाज सुनकर मुनज़्ज़ा शर्म से पानी पानी हो गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था और वो मजीद कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी और बादल के इरादे समझ चुकी थी। उसे जल्दी से बादल के बाजू को नीचे से निकाल कर बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश की कि शायद वो खुद को अंदर बंद कर ले, पर बादल उससे कहीं ज्यादा तेज निकला।
उसने लपक कर मुनज़्ज़ा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। मुनज़्ज़ा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख बाजिल की बाहों में आ गिरी। बाजिल ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया और लाइट ऑफ कर दी। हर तरफ अंधेरा छा गया। बाजिल की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। आंसुओं ने उसे किसी नाजुक शीशे की तरह थाम रखा था। क्या हुआ वकील साहिबा? सारी बहस भूल गई या फिर मेरे इस रूप से डर गई आप? बाजिल ने उसके कान के पास झुककर सरगोशी की और उसकी गर्दन पर अपने लबों का नरम सा लम्स छोड़ा। इससे मुनज़्ज़ा के पूरे वजूद में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। आप बहुत बुरे हैं। मुनज़्ज़ा ने हकलाते उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा, पर बाजिल ने मुस्कुराते उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड पर टिकाए और खुद उसके ऊपर झुक गया। और मुनज़्ज़ा चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। उसकी सारी वकालत और जिद और वो मुकम्मल तौर पर बाजिल के सहन में झगड़ी जा चुकी थी। कमरे में सुबह की रोशनी की धूप दस्तक दे रही थी। जब मुनज़्ज़ा की आंख खुली, उसने हड़बड़ाकर अपने बराबर में गिर्द लिपटी चादर को कसा और इर्द गिर्द देखा, पर बाजिल वहां नहीं था। रात के लम्हात उसके दिमाग में फिर से अजागर हुए तो उसका चेहरा शर्म से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से इस मगरूर इंसान के सहर में गिरफ्तार हो गई थी, जिससे वो सारा दिन लड़ती रहती थी। वो भी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और बाजिल तौलिए से अपने गीले बाल खुश्क करता बाहर आया। वो सिर्फ ट्राउजर में था और उसके चौड़े सीने और बाजुओं के मसल्स वाज़ेह हो रहे थे। मुनज़्ज़ा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अरे वाह मेरी जिद्दी वकील साहिबा, जाग गई मेरी। मुझे तो लगा था कि रात नींद पूरी नहीं हुई तो आज कचहरी की छुट्टी होगी। बाजिल ने उसकी बौखलाहट से लुत्फ अंदोज होते हुए करीब आकर शरारत से कहा और जानबूझकर अपना गीला तौलिया उसके सर पर रख दिया। आप बहुत बेशर्म है। कितनी बार कहा दूर रहा करे, पर आपको इतनी किसी बात का असर ही नहीं होता। और ऐसा ने जल्दी से तौलिया हटाकर उसे घूरा। उसकी नजरें बाजिल के चेहरे से टिक नहीं पा रही थी। कल रात तो तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही थी, और वैसे भी आपने शौहर से कैसी शर्म? बाजिल ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर उसके गाल को छुआ तो मुनज़्ज़ा ने उसका हाथ झटका। को तुम्हें बाद में देखूंगी, मुझे देर हो रही है। वो अपना मुंह छुपाते जल्दी से वॉशरूम की जनब भागी थी, जबकि बाजिल का बेसख्ता कहका पूरे कमरे में गूंज उठा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में खुद तब्दीलियां आने लगी। बहस और तकरार जारी थी, मगर उसमें अब मोहब्बत की चाशनी भी होती गई थी। बाजिल मुनज़्ज़ा को बहुत ख्याल रखने लगा था और मुनज़्ज़ा भी लाशौरी तौर पर उसकी हर बात मानने लगी थी। कुछ दिन वही हंसी खुशी गुजर गए। फिर एक रोज मुनज़्ज़ा अपने कमरे में फोन पर अपनी माँ बेगम राहिना से बात कर रही थी। मम्मा की आवाज फोन पर बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी और उन्होंने तब का बहाना करके जल्दी फोन बंद कर दिया था। मुनज़्ज़ा का दिल उदास हो गया। फोन हाथ में पकड़े बोझल कदमों से बाहर लॉज में आई। बाजिल सोफे पर बैठा लैपटॉप पर ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रहा था। मुनज़्ज़ा धीरे से उसके पास है और उसके साथ सोफे पर खामोशी से बैठ गई। बात सुने, मुनज़्ज़ा ने दुखी आवाज में कहा। क्या हुआ है? किसी ने मेरी वकील साहिबा को कुछ कहा है क्या? या आज फिर कोई केस हार गई हो? बाजिल ने स्क्रीन पर से नजरें हटाए बगैर मुस्कुराते उसे छेड़ा। माँ की बहुत याद आ रही है। यानी क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उनकी आवाज भी कैसी अजनबी और बीमारी जैसी लग रही थी। मुझे उनके पास जाना है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुनज़्ज़ा कहते कहते रो पड़ी और उसके आंसू गालों पर गिरने लगे। बाजिल ने उसकी रोती आवाज सुनी तो जल्दी से उसे अपना लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और मुनज़्ज़ा के आंसू देखकर तड़प उठा। उसने फौरन आगे बढ़कर मुनज़्ज़ा को अपने साथ लगा लिया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया। वो जानता था कि बेगम राइना की हालत वाकई में खराब है और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है। अरे पागल लड़की, रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाबा जान से बात हुई है मेरी। 2 दिन तक हम सब वहां जा रहे हैं दुबई, और तुम अपनी मम्मा से जी भर के मिल लेना। उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। बाजिल ने उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए कहा और उसके आंसू साफ किए और उसकी कमर सहलाता रहा। सच कह रहे हैं आप? हम दुबई जा रहे हैं? मुनज़्ज़ा ने सिसकते हुए उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। हाँ ना, सच कह रहा हूँ मैं। अब रोना बंद करो वरना मैं टिकट कैंसिल करवा दूंगा। बाजिल ने उसे चुप करवाने के लिए हल्की सी धमकी दी तो मुनज़्ज़ा जल्दी से खामोश हो गई और सुकून के साथ लेटते हुए उसके सीने पर लग गई। उसे बाजिल की कुर्बत और एहसास बहुत मानूस और प्यारा लगने लगा था। 2 दिन बाद वो दोनों दुबई के उस बड़े अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े थे, पर वहां पहुंचकर मुनज़्ज़ा की दुनिया जैसे एक ही पल उजड़ गई। जब ज़हीर साहब ने रोते से माँ की असल बीमारी उनकी आखिरी स्टेज का बताया। अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ी फूट कर रोती और उसके कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। आप सबने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बाजिल, मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
میں اپنی مما کے پاس رہتی، ان کی خدمت کرتی. آپ سب کتنے ظالم ہو، مجھے میری ماں سے دور رکھا. منزہ نے روتے ہوئے بازل کے سینے پر مکے مارے اور اس کا گریبان پکڑ کر چیخی. بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے مضبوطی سے اپنے گلے لگا لیا. ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے منزہ. اوپو خود نہیں چاہتی تھی کہ تم ان کی وجہ سے ذرا بھی دکھی ہو. تم ہمت کرو، وہ تمہیں اس حال میں دیکھیں گے تو ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی. خدا کے لیے خود کو سنبھالو. بازل کی اپنی آنکھیں نم تھی پر اسے مسلسل سنبھال رہا تھا اور اس کی ہر ممکن کیئر کر رہا تھا. منزہ کسی نہ کسی طرح اپنے آنسو چھپا کر کمرے میں داخل ہوئی تو اسپتال کے بیڈ پر بیگم رائنا کو مشینوں کے بیچ کھڑا دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا. بیگم رائنا نے انتہائی تکلیف کے باوجود اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے منزہ کا ہاتھ پکڑا. میری بچی، رونا نہیں، میں تو بس اپنی فرض پورا کر چکی ہوں نا. تم بازل کے ساتھ خوش رہو، یہ میری خواہش تھی. اور بازل بیٹا ادھر ہو. انہوں نے بازل کو پاس بلایا، منزہ کا ہاتھ بازل کے ہاتھ میں دے دیا. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری امانت کا خیال رکھنا، یہ بہت نادان ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا. انہوں نے بازل کی طرف دیکھ کر التجا بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. بازل نے نم آنکھوں سے ان کا ہاتھ چوما. آپ فکر نہ کرے پپو، کچھ نہیں ہوگا آپ. اور منزہ آپ میری جان ہے، میں اسے کبھی بھی رونے تک نہیں دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اگلے دن بیگم رائنا کی کیمیو تھراپی کے بعد پہلی سرجری تھی اور وہ کینسر سے یہ جنگ ہار گئی اور آپریشن تھیٹر میں بھی ان کی سانسیں رک گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جان لی. منزہ تو جیسے پاگل ہو گئی. وہ اپنی ماں کے بے جان جسم سے لپٹ کر گھنٹوں روتی رہی. یہ لمحات انتہائی تکتا اور جذباتی ہو گئے تھے. ظہیر صاحب بھی اپنی اکلوتی بہن کو کھو کر بالکل ٹوٹ گئے تھے اور اس مشکل ترین وقت میں بازل بھی وہ واحد سہارا تھا جس نے ان سب کو سنبھالا. اس نے ہمت کر کے پاکستان میں لا کر بیگم رائنا کی تدفین کی، ان کے تمام انتظامات کیے. وہ ایک سائے کی طرح منزہ کے ساتھ رہا، اس کے دکھ کو بانٹنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے راتوں کو جاگ کر دلاسے دیتا. بس کرو منزہ، پھوپھو کے لیے دعا کرو. بازل سوئم کے بعد تعزیت کے لیے آتے لوگوں سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوا. اب جانتے تھے سب اس لیے ماما نے اپنے آخری لمحے میں بھی کاش مجھے پہلے بتا دیتے تو ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتی. منزہ نے سسکتے ہوئے کہا اور بازل نے اس کو رونے دیا تاکہ اس کے دل کا سارا غبار نکل جائے. اس المناک سانحے کو پورے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. منزہ بازل کی بے پناہ محبت اور ظہیر صاحب کی شفقت سے اپنے اس گہرے دکھ سے باہر آ چکی تھی اور اب ان کے گھر میں ایک نئی رونق اور زندگی آ چکی تھی. رافیہ، میرے بچے رک جاؤ، گر جاؤ گے، کیا طوفان مچا رکھا ہے تم نے. منزہ نے ہانپتے ہوئے لاؤنج میں بھاگتے اس 2 سالہ بچے رافیہ کو پکڑنے کی کوشش کی جس نے نیا نیا چلنا شروع کیا تھا اور وہ پورے گھر پر کو سر پہ اٹھائے رکھتا تھا. وہ دادا کا لاڈلا اور دادی کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ کا کل اثاثہ. سارا دن دادا دادی کے پاس رہتا اور ان کے ساتھ کھیلتا، پر ظہیر صاحب اسے گود میں لے پھولے نہ سماتے. ان کی ساری اداسی رافیہ کی ہنسی میں کہیں گم ہو گئی تھی. شام کو جیسے ہی بازل کر رہا تھا، رافیہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں میں بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہا تھا اور بازل اپنے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس وہیں گرا کر اسے ہوا میں اچھالتا اور زور سے اسے اپنے سینے سے لگا لیتا. یہ منظر دیکھ کر منزہ جو کچن کے دروازے پر کھڑی ہوتی، اس کی آنکھوں میں بھی چمک آ جاتی اور وہ سارا دن کی تھکن بھول کر ان دونوں کو پیار سے دیکھتی رہتی. بازل رافیہ کو اٹھائے منزہ کے پاس آتا اور اس کے ماتھے پر پیار دے کر اس کا سارا دن کا حال پوچھتا. ایک رات جب پورا گھر سو چکا تھا، منزہ کچن میں رافیہ کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی کہ بازل دبے قدم چلتا اندر آیا اور کچن کے کوریڈور سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. یار، میری نا آپ کی کل زندگی میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے. بازل نے منزہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا. کس کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ کیلشیم کی کمی ہو گئی کیا جو اتنا تھکے تھکے لگ رہے ہیں؟ منزہ نے اسے پرانی عادت کے مطابق مسکراتے ہوئے مزاح کیا اور دودھ کا گلاس اٹھا کر شیلف پر رکھا. بازل نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے پیچھے سے بیک ہگ کیا اور اس کے کندھوں پر ایک نرم سا بوسہ دیا. بیٹی کی. بازل نے انتہائی لاڑ اور محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کی. منزہ نے چونک کر مسکراتے اس کی جانب پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اپنی بھویں اچکائی. پلیز رافیہ، اب ایک چھوٹی بہنا آنی چاہیے نا رافیہ کی. آئی ایم مسنگ مائی پرنسس، بالکل تمہاری طرح ضدی اور معصوم ہو. بازل پیار سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا تو منزہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے میں چھپ گئے. بازل نے اسے اپنے مضبوط خصال میں لے لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا. دونوں کے چہرے پر آسودگی اور مکمل ہونے کا احساس تھا. زندگی انہوں نے بہت
घुटन रास्तों से गुजार कर उस खूबसूरत मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां वो दोनों एक दूसरे के बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आप तो कहते थे कि मेरे करीब आने के लिए दिल और चेहरा प्यारा होना चाहिए, और मेरे पास दोनों ही नहीं है। अब क्या हुआ नवाब साहिब, जो इतनी फरमाइशें कर रहे हैं? मोनाजा ने उसके सीने पर सर रखते हुए कहा और उसे छेड़ा। बादल ने एक दिलकश कहका लगाया और उसे जरा सा खुद से दूर कर लिया। उसकी चमकती हुई आंखों में झांका। वो तो मेरा पागलपन और अना थी, जो मैं इस मासूम सी चुड़ैल को पहचान न सका। सच तो यह है कि मुनस्सा, कि उन कचहरी की किताबों और लड़ाइयों के पीछे छुपा तुम्हारा चेहरा मुझे तभी भा गया था, और ये दिल तुम्हारा दीवाना उस दिन ही हो गया था, जब उस दिन तुम बारिश में भीगती हुई आई थी, और पहली बार मेरा दिल डरा था तुम्हें खो देने के एहसास से। उस दीवानगी को मानने और तुम तक पहुंचने में जरा देर लगी। बादल के मोहब्बत भरे अल्फाज ने मुनस्सा के दिल को मुकम्मल तौर पर अपने नाम कर लिया था, और उसने मुस्कुराते हुए दोबारा बादल के गले में बाहें डाल दी, और उनका ये खूबसूरत रिश्ता मोहब्बत की उन गहराइयों को छू रहा था जहां से वापसी नामुमकिन थी।